everyone, welcome back in your own YouTube channel. Today we are going to discuss the remaining part of chapter 4, Consumer Equilibrium Indifference Curve Analysis. In this lecture, you will learn about the concept of marginal rate of substitution and properties and assumptions of indifference curve. So before starting today's lecture, just recall the previous concepts of this chapter. Like, what do you mean by indifference curve? As our chapter is based on indifference curve analysis, we must have to understand it properly. So let's recall the concept indifference curve. What do you mean by indifference curve? We already discussed this, that it is a locus of different points of different points, and each point representing a commodity bundle and consisting of some units of X and some units of commodity Y that gives the same level of satisfaction. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लोकस है. लोकस का मतलब हम डिस्कस कर चुके थे कि कुछ पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, दैट विल कॉल एज अ लोकस. तो ये लोकस होता है डिफरेंट पॉइंट्स का, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसका लोकस होता है जो रिप्रेजेंट करता है कमोडिटी बंडल. मतलब जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसमें कुछ बंडल्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होती है, लाइक ए बी सी एंड सो ऑन. सपोज ए कॉम्बिनेशन में कुछ कमोडिटी होगी एक्स की, कुछ कमोडिटी होगी वाई की, और ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इंडिफरेंस कर्व में जो होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, ये सब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. इसके अलावा वी डिस्कस्ड दैट व्हाट यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज just a collection of indifference map, or we can say that a family of indifference curve. जब बहुत सारे indifference curve एक साथ graphically represent करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? indifference map. indifference set जब combinations होते हैं उसको हम schedule phase में discuss करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इंडिफरेंस सेट कहते हैं. एंड वी डिस्कस द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. दैट मीन्स अगर आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन है तो आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे? आप उसी कमोडिटी को, उसी बंडल को प्रेफरेंस ज्यादा दोगे जिसमें ज्यादा कमोडिटीज आपको दिखाई दे रही होंगी. सो दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. So these are the concepts topic which we have discussed already in our previous lecture. Because today's lecture is based on indifference curve, इसीलिए मैंने आपको previous topic recall कराया था. Now let's start with the today's concept, that is marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution होता क्या है students? Let's read the meaning first. It refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remain the same. यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये वो रेट होती है जिस पर कंज्यूमर अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, right now also we have discussed that in the indifference curve, what are the points? All the points which are on the same indifference curve give you the same level of satisfaction. हमने indifference curve मैप पढ़ा था, सॉरी indifference मैप हमने डिस्कस किया था, हमने IC1, IC2, IC3 के बारे में पढ़ा था. तो आपने अगर देखा होगा कि indifference curve 1 में या IC1 में जितने भी पॉइंट्स थे वो सब एक ही जैसा सेटिस्फेक्शन देंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे. सेम एज indifference curve 2, all the points which are lie on the indifference curve 2 give the same level of satisfaction, and all the points which lie on indifference curve 3 give the same level of satisfaction. But what is the difference? कि जो points indifference curve में हैं वही सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, बट इंडिफरेंस कर्व 1 में, IC1 में जो पॉइंट है और IC2 में जो पॉइंट है वो एक जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे. हमने भी डिस्कस किया था, हायर द IC हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन. अगर इंडिफरेंस कर्व 1 नीचे है, इंडिफरेंस कर्व 2 ऊपर है, तो 2 वाले पॉइंट पे जितने भी, सॉरी IC2 के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या देंगे? आपको हायर सेटिस्फेक्शन देंगे. ये हमने पढ़ा था. सो यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम. इंडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को
कुछ कॉम्बिनेशंस लेने पड़ते हैं कमोडिटी टू कमोडिटीज की। सपोज हम वो दो कमोडिटी एक्स और वाई की बात करते हैं, तो दो कमोडिटी की कॉम्बिनेशन लेगा वो, कुछ कमोडिटी एक्स की लेगा, कुछ कमोडिटी वाई की लेगा। अगर वो एक्स की कमोडिटी को इंक्रीज कर रहा है तो उसे वाई की कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई it will give you the same level of satisfaction, वो आपको एक जैसा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पर हम ये पता करते हैं कि एक के बदले में आप दूसरे का कितना एक्सचेंज या कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। सो इस रेट को, जिस रेट पर वो एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो अल्टीमेटली हमें इससे ये पता चलता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी दो कमोडिटी, किसी दो प्रोडक्ट्स के बीच में किस तरह से एक्सचेंज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट करेगा, जिससे उसको एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिले। सो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। एक बार आप और इसकी मीनिंग पे हम जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू द रेट, ये उस रेट को रेफर करता है at which the commodities can be substituted। हमने दो कमोडिटी की बात करी, सपोज यहाँ पे x और y दो कमोडिटी है, वो कमोडिटी सब्स्टिट्यूट होगी, एक्सचेंज होगी विद ईच अदर। x के बदले में y, y के बदले में x सब्स्टिट्यूट हो सकती है, ठीक है। so that total satisfaction of the consumer remain the same, टोटल सेटिस्फेक्शन उसको सेम मिले, ठीक है। इसको और अच्छे से हम स्केड्यूल से समझेंगे, बट उससे पहले विल डिस्कस द फॉर्मूला, ठीक है। इसको जनरली स्टूडेंट हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। यहाँ पे दो कमोडिटीज होती है एक्स एंड वाई, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, एक्स का वाई के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यूनिट ऑफ वाई, व्हाटएवर द वाई कमोडिटी वी हैव, ठीक है, अपॉन यूनिट्स ऑफ एक्स। वाई वो कमोडिटी है जो सेक्रीफाइस करेगी, विलिंग टू सेक्रीफाइस, यानी एक्स वो कमोडिटी है जिसको गेन हो रहा है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। Is that clear, students? Now we will better understand this concept with the help of schedule. Suppose we have taken two commodities x and y, okay, and these are the combination A, B, C, D, E, and two commodities, commodity x and commodity y. First look at the three column. On commodity x, एक combination पे x commodity कितनी है 1, ठीक है, and y की commodity कितनी है 15। इसका मतलब एक कंज्यूमर के पास एक बंडल है, ए इज अ बंडल जिसमें उसके पास एक्स कमोडिटी कितनी है 1 और वाई की कमोडिटी कितनी है 15, ठीक है, और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड बंडल, बी बंडल, इन दैट इसने 1 कमोडिटी क्या करी है, कंज्यूम मोर करी है, तो यहाँ पर उसको 1 कमोडिटी का क्या हुआ स्टूडेंट, गेन हुआ। ओके, 1 इंक्रीज हुआ है तो 1 कमोडिटी का इंक्रीज किया उसने, बट जब हमने अभी डिस्कस किया कि एक कमोडिटी के इंक्रीज करने से दूसरे कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पहले 15 थी वाई कमोडिटी, अब कितनी हो गई 10 minus 5। That means how many commodity he has to sacrifice to make a bundle be 5 commodities of y, so that he gain 1 more commodity of x. Okay, so now the C bundle, थर्ड कमोडिटी, एक और उसने एक्स्ट्रा कमोडिटी गेन करी है एक्स में, पर कितने का उसको लॉस हुआ, सेक्रीफाइस किया 4 का, 4 कमोडिटी उसने उसको दी, तो उसके पास एक कमोडिटी एक्स की आई, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है। सेम ऑन द डी बंडल, अगेन 1 मोर ही हैव अ गेन, देन कितने का सेक्रीफाइस किया -3, माइनस मतलब सेक्रीफाइस करना, और लास्ट में अगर आप देखोगे एक और कमोडिटी उसने ली तो कितने का सेक्रीफाइस किया, 2 का सेक्रीफाइस किया। आई बात समझ में। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MRS XY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x ओवर x फॉर y, कैसे निकालते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y को क्या हो रहा है, लॉस। तो व्हाटएवर कमोडिटी हु हैविंग अ लॉस, जो सेक्रीफाइस कर रही है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी, और जो जिसको गेन हो रहा है दैट विल बी ऑन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज द चेंज इन y, आप देखो 15 से 10, फर्स्ट में कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है, सेकंड में 15 से 10 हुआ तो 5 का चेंज हुआ,
5 कम्युनिटी ऑफ y और कितने का चेंज हुआ इसमें 1 का 5:1 5 y कम्युनिटी 1 x कम्युनिटी। ऑन द सी बंडल आप देखोगे 4 का चेंज हुआ यहाँ पे 1 4 y प्लस 1 x का। सेम ऑन द सी डी बंडल 3 y कम्युनिटी 2 x कम्युनिटी एंड लास्ट ई बंडल 2 y कम्युनिटी 1 x कम्युनिटी। सो ये क्या हो रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखो x कम्युनिटी को क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ 1 होगा, दिस इज 1x, ओके। x कम्युनिटी पे क्या हो रहा है, इट विल बी 1, एक एक कम्युनिटी इंक्रीज हुई है। 1 कम्युनिटी इंक्रीज करने के लिए पहले बी कॉम्बिनेशन में 5 कम्युनिटी y की सेक्रीफाइस करनी पड़ी। सी बंडल में आप देखो 1 कम्युनिटी x को इंक्रीज करने के लिए 4 कम्युनिटी ऑफ y को सेक्रीफाइस करना पड़ा। डी बंडल में 1 कम्युनिटी x को इंक्रीज करने के लिए 3 कम्युनिटी ऑफ y को सेक्रीफाइस करना पड़ा। एंड लास्ट वन ई बंडल 1 कम्युनिटी ऑफ x इंक्रीज करने के लिए 2 कम्युनिटी ऑफ y को सेक्रीफाइस करना पड़ा। आप देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेट हियर, 5 4 3 2, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इन इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग, ये डिमिनिश होता है। इसका रेट देखो 5 4 3 2, डिमिनिशिंग रेट से ये अपना रेट बताता है। तो व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज डिमिनिशिंग। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसीलिए इसको marginal rate of substitution is it measures the slope of indifference curve, and this is very important question from this topic. कई बार क्वेश्चन में शॉर्ट एंड लेंथी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या चीज है, हाउ वी डिटरमाइन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बाय द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा है। तो स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा उसको देखने के लिए विल गो फॉर द डायग्राम, ओके। यहाँ देखो आप ऑन एक्स एक्सिस कमोडिटी y यहाँ सॉरी कमोडिटी x यहाँ पर है, ओके, और कमोडिटी y ऑन दी y एक्सिस, फाइन। अब आप देखिए 1 कमोडिटी x को इंक्रीज करने के लिए 15 कमोडिटी y यहाँ पे दी थी फर्स्ट ए बंडल पे। इसका कॉम्बिनेशन देखो 1 कमोडिटी x प्लस 15 y। सेकेंड कमोडिटी जैसे ही उसके पास इंक्रीज हुई उसने क्या किया, 5 कमोडिटी सेक्रीफाइस करी, तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया 2x प्लस 10y, 2 कमोडिटी ऑफ x एंड 10 कमोडिटी ऑफ y। ऑन सी बंडल 3 कमोडिटी ऑफ x एंड 6 कमोडिटी ऑफ y। On D bundle 4 commodity of X and 3 commodity of Y, and on E bundle 5 commodity of X and 1 commodity of Y. So ये सारे पॉइंट्स जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, इसको मैंने क्या बताया था, इसको लोकस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, इसमें कुछ कमोडिटी X की है, कुछ कमोडिटी Y को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये A B C D E जितने भी पॉइंट्स IC1 पे है दे गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि IC1 पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है A, B, C, D, E that give you the same level of satisfaction. Okay students, यहाँ तक आपको पता है। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इसमें डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखो A बंडल पे कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, B बंडल तक आने के लिए आप ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर कितने कमोडिटी का Y ने सेक्रीफाइस किया, 5 कमोडिटी Y को सेक्रीफाइस करना पड़ा। B से C पे आने के लिए कितनी कमोडिटी का Y ने सेक्रीफाइस किया, 4 commodity. C to D, how much? 3 commodity. And D to E, 2 commodity. What is the rate? 5 4 3 2. आप ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो पहले में कितना बड़ा है, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये क्या हो रहा है, फॉल होता जा रहा है, ये डिमिनिश होता जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस what is the shape of indifference curve? The shape of indifference curve is convex. इसीलिए इसका शेप कैसा आ गया, IC is convex shape due to diminishing marginal rate of substitution. क्योंकि marginal rate क्या हो रहा है, diminish हो रहा है, इसीलिए indifference curve का शेप कैसा बना, convex shape बना। कैसा बना, convex shape बना।
ओके, सो ये हमारा जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x for y? Delta y upon delta x. That means units of y willing to sacrifice upon unit of x willing to gain. So this is the concept of marginal rate of substitution, जो आगे जाके आपको हेल्प करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने में, और वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. Now we talk about the second concept, second topic of the lecture, that is assumptions of indifference curve. What do you mean by assumptions here? किसी भी थ्योरी या लॉ में हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि ये होगी तभी वो थ्योरी पॉसिबल है या लॉ पॉसिबल है, वो एप्लीकेबल होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एजम्पशंस कहते हैं. तो उसी तरह इंडिफरेंस कर्व के भी कुछ एजम्पशंस होते हैं. लेट मी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ट्रू कम्युनिटीज. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कम्युनिटीज. यहाँ पे हम दो कम्युनिटीज की बात करते हैं, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या ए बी, एप्पल बनाना, व्हाटएवर. सो इंडिफरेंस कर्व इज एज्यूम दैट कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी. एक कंज्यूमर के पास फिक्स्ड अमाउंट होती है मनी की, एंड होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंड ऑन टू कम्युनिटीज, वेदर इट विल बी ऑन एक्स और वाई, so that he get the same satisfaction level, but the prices of that goods x और y will be the constant. उसकी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए हमेशा जब तक वो लॉ एप्लीकेबल हो. तो यहाँ पे फर्स्ट assumption क्या होता है? टू कम्युनिटीज का, कि कंज्यूमर दो कम्युनिटी को यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, कंजप्शन कर रहा है, क्योंकि उसके पास फिक्स्ड अमाउंट होती है मनी की, और वो दो कम्युनिटी को पे अपना कंजप्शन कर रहा है, और उसकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. Okay, now move to the second assumption, rational consumer. What do you mean by rational? Rational का मतलब होता है normal consumer. Okay, so first of all, consumer is assumed to be behave in a rational manner. कि वो एक normal consumer की तरह behave करे, rational manner की तरह behave rational manner में करे. जैसे उसका एम होना चाहिए कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करे. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर का सबसे पहला मोटिव ये होता है कि वो क्या करे, सबसे ऐसा कंजप्शन करे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. सो कंज्यूमर हियर मस्ट बिहेव इन अ रैशनल मैनर, कि उसको कम्युनिटी एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कम्युनिटी वाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ओके, सो दिस इज द सेकंड assumption, रैशनल कंज्यूमर. थर्ड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. As we already discussed that indifference curve analysis is based on ordinal utility approach. हम यहाँ पे cardinal numbers की बात ही नहीं करते हैं. So here we assume that he like community X or community Y, or he get more utility from community X or from Y community. So here we do not talk about the cardinal numbers. हम cardinal numbers की बात कर रहे हैं, हमने ये बात नहीं करते यहाँ पर कि X community से 20 utils का satisfaction मिल रहा है या Y से 10 utils का satisfaction मिल रहा है. We don't talk about the cardinal utility approach here, but we compare the two communities X और Y. हम compare जरूर करते हैं कि which community will give him more satisfaction, better satisfaction. Suppose X will give him more satisfaction as compared to Y. So this concept will come under the ordinal utility approach. ठीक है, तो थर्ड assumption आपका हो गया ordinal utility approach. Now the fourth assumption is non-satiety. Satiety means satisfy. Okay, so consumer will be never satisfied at a point of time. Is it reality? Of course. कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं होता. एक चीज पसंद आए तो उसकी कुछ दिन कंजप्शन करने के बाद उसकी प्रेफरेंस दूसरे पे पहुंच जाती है. ही विल नेवर सेटिस्फाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा वो प्रेफर करना चाहेगा जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है. मीन्स सपोज इन IC1 he get 1 commodity of X and 15 commodity of Y, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. बट IC2 में अगर इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करें तो इस केस में सॉरी उसको 2 कम्युनिटी X और 15 कम्युनिटी ऑफ Y की मिल रही है. एक कम्युनिटी एक्स्ट्रा X की उसको मिल रही है, तो किसको प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली IC2 पे जो कॉम्बिनेशन है 2 कम्युनिटी ऑफ X एंड 15 कम्युनिटी ऑफ Y को प्रेफरेंस करेगा, बिकॉज उसको वहां पर ज्यादा क्या मिल रहा है? कम्युनिटी मिल रही है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले. ही लाइक्स मोर
एक्स कम्युनिटी, उसको ऑब्वियसली उसका ज्यादा मिल रहा है. सो यहाँ पे ही ऑलवेज ट्राई टू मूव टू अ हायर आईसी टू गेट हायर एंड हायर सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ओके, fifth assumption is diminishing marginal rate of substitution. Right now just we discuss about the term marginal rate of substitution क्या होता है. Because marginal rate of substitution का फीचर डिमिनिश है इंडिफरेंस कर्व में, इसीलिए ये इसका assumption हो गया. Okay, so indifference curve analysis diminishing marginal rate substitution. Marginal rate of substitution का कैसा diminishing rate बताता है, and due to this diminishing rate of marginal substitution, it IC curve always in convex shape. उसका shape कैसा बनता है, कॉन्वेक्स शेप बनता है. आप देखो हमने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, इसका जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है. 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2 and 2 to 1 लाइक और दिस. सो ये डिमिनिश हो रहा है, और इस डिमिनिशिंग रेट के कारण, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा बन गया, कॉन्वेक्स बन गया. सो दिस इज द assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अगर ये डिमिनिश नहीं होता, सपोज इसकी कांस्टेंट फीचर नहीं, ये अगर ये अभी तो ये क्या है 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 लाइक दैट है. तो इसीलिए इसका शेप कैसा है, इसका शेप कॉन्वेक्स है. ओके, बट अगर ये इस केस में ऐसा होता आपका 1:1, 1:1, 1:1 and 1:1, then what will be the shape of IC? The shape of IC is constant or straight line. ठीक है, और ये इंक्रीजिंग रेट होती है अगर ऐसा होता 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, then the shape of IC will be concave. बट ये वाला फीचर हमारे इसमें नहीं है, सेकेंड फीचर नहीं है. इसका शेप, इसका कैसा फीचर है, डिमिनिशिंग होता है, दैट्स व्हाई इसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है. So this is the assumption of indifference curve. 5 assumptions we have, which we have to discuss, which we will discuss here. 2 commodities, rational consumer, ordinary utility, non-satiety, and diminishing marginal rate of substitution. Next, we discuss the last topic of the lecture, properties of indifference curve. So here we have 5 properties of indifference curve. First property is indifference curve are always convex to the origin. Right now we have discussed indifference curve is convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution. And why marginal rate diminishes? Marginal rate diminishes continuously because of law of diminishing marginal utility, जो हमने पढ़ा है. As consumer consumes more and more commodity of X, जब वो ज्यादा से ज्यादा commodity किसकी कंजम्पशन कर रहा है, X की, his marginal utility from X keep on declining. ठीक है, जो उस X को मार्जिनल यूटिलिटी जो X से मिल रही है उसको, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. एंड he is willing to give less and less of commodity Y. Okay, so for what, for commodity X. So therefore the shape of indifference curve is convex to the origin. इसका शेप कैसा बन गया, कॉन्वेक्स बन गया. सो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन में, कि व्हाई इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ diminishing marginal rate of substitution. Students, it must be noted that marginal rate of substitution always indicates the slope of indifference curve. डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, कॉन्वेक्स है. तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन शो बताता है, इंडिकेट करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है. ये आपका इंडिफरेंस कर्व है सपोज, ठीक है. यहाँ पे आपने y x कमोडिटी ली है, यहाँ पे y ली है, दिस इज IC1. आप देखो कि किस तरह से जा रहा है, ये स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि जो एक कंज्यूमर है वो अगर x कमोडिटी का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है तो उसे y कमोडिटी का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट ही गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि उसको एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिल सके. सो इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर एंड मोर
units of commodity X, he has to reduce the commodity number of units of commodity Y so that he get the same level of satisfaction. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है? बिकॉज as he consume more and more commodity of X, he has to reduce less and less commodity of Y so that he get the same level of saturation. तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि जैसे जैसे हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो ज्यादा होगा पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से. सो हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, ज्यादा बंडल गुड्स का रिप्रेजेंट करता है, एंड विच मीन्स हायर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. सपोज दिस इज IC1, यहाँ पे आप कमोडिटी Y ले रहे हो, यहाँ पे आप कमोडिटी X ले रहे हो. दिस इज IC1 एंड हियर आर 2 पॉइंट्स. ये आपका A पॉइंट है, ठीक है. सपोज A की पॉइंट लेती हूँ A, और ये आपका एक और इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC2. ओके, हियर आई विल मेक अनदर पॉइंट दैट इज B. ओके, नाउ सी द पॉइंट विच लाई ऑन IC1, पॉइंट A. आप पॉइंट A में देखोगे, यहाँ पे इसने X कमोडिटी का इतना कंजप्शन किया और Y कमोडिटी का इतना कंजप्शन किया. This much of X commodity and this much of Y commodity he consumed. But on B point, आप देखो X commodity का इतना कंजप्शन एंड Y commodity का इतना कंजप्शन. ठीक है, क्या हो गया? किसमें ज्यादा है? सेकेंड B पॉइंट के अंदर आप देखो मोर ऑफ X commodity एंड मोर ऑफ Y commodity एज कंपेयर टू पॉइंट A, combination of A. So IC2 represent higher satisfaction as compared to IC1. जो पॉइंट B है उस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा पॉइंट A से बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. सो हायर द IC represents higher levels of satisfaction. Always IC1 give less satisfaction as compared to IC2 and IC2 get less satisfaction as compared to IC3, क्योंकि जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा उसको. ओके, second last property is indifference curves can never intersect each other. क्या इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. क्यों नहीं कर सकते? एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आपको यहाँ पे एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. IC1 से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वही सेटिस्फेक्शन आपको IC2 में मिल रहा है? नहीं मिल रहा. IC1 में सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है जबकि IC2 के B पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है. सो एज द टू IC कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. वो इंटरसेक्ट भी नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? It means only one indifference curve will pass through a given point on indifference map. एक indifference map में एक ही लेवल से पास हो सकता है indifference curve. Suppose इसको भी एग्जांपल से समझते हैं डायग्राम से. एक और indifference curve बना रही हूँ मैं यहाँ पर. Y axis, X axis, here we see good X और यहाँ आप ले लो good Y. Okay, this is your indifference curve. IC1 ले लिया. ओके, और इसी पे मैं ये मैंने IC2 बना दिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट. तो इस पॉइंट को सपोज हम ले लेते हैं A एंड दिस पॉइंट विल टेक B. या आई विल टेक पॉइंट C. इसको समझने के लिए प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना. आप देखो IC1 आपका ये वाला है. IC1 में 2 पॉइंट्स है A एंड B. सो हमने डिस्कस किया था कि ऑन द सेम IC ऑल द पॉइंट्स गिव द सेम सेटिस्फेक्शन. एक IC पे जितने भी पॉइंट्स है वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे. सो यहाँ पॉइंट A किसके बराबर हो गया? पॉइंट B के बराबर हो गया क्योंकि ये IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 पे लाई कर रहे हैं. ओके, और इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करें तो A इक्वल्स टू C होगा. ये किस पे हो रहा है? इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ रहे हैं. ये इंडिफरेंस कर्व 2 है. पॉइंट A और C सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है. ओके, तो इस हिसाब से B किसके बराबर हो गया? C के बराबर हो गया. दैट मीन्स पॉइंट B और पॉइंट C का सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हायर द IC हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन. सो इट इज नॉट पॉसिबल. एज
B and C lies on two different indifference curve, IC1 and IC2. So they did not give the same level of satisfaction. Therefore, indifference curve cannot intersect each other. Okay. And the last property of indifference curve is indifference curve can never touch x एक्सिस एंड y एक्सिस. ये कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस को टच नहीं करते. आप देखो यहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा है, y को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? इसका भी रीजन है, बिकॉज वी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज्यूम्स कंजप्शन ऑफ टू कमोडिटीज. एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी हमने माना है, दो ही कमोडिटी को हम कंजप्शन करते हैं. यहाँ पर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को किसमें स्पेंड कर रहा है? ऑन टू गुड्स, एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी. ओके, सो इफ इंडिफरेंस कर्व टचेस ऑन एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व आपका, ये मान लो ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स the consumption of commodity X would be 0. यहाँ पे X commodity का consumption कितना है? 0. और Y commodity का ज्यादा है. ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, क्योंकि उसको तो दो commodity खरीदनी है, X and Y. और similarly, if the indifference curve touches on Y axis, इसका मतलब it would mean consumption of commodity Y would be 0. तो ये possible नहीं है. So indifference curve never touch any of the axis, whether it is X axis or Y axis. So how many properties we have discussed here? 5 properties. First is indifference curve are always convex to the origin. क्यों होता है? रीजन भी साथ साथ में पढ़ते जाना. Because of marginal rate, diminishing marginal rate of substitution, and it indicates the slope of indifference curve also. Second property, indifference curve slopes downward. ये downward क्यों होता है? Because हम एक कमोडिटी का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे का हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. Because of this nature, it slopes downward. थर्ड, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. जो जितना ज्यादा हायर होगा इंडिफरेंस कर्व, उतना ही ज्यादा सैटिस्फैक्शन देगा, हमने भी पढ़ा. फोर्थ, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, सेम सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. लास्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि हम दो कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं. तो अगर एक कमोडिटी का ही कंजप्शन करेंगे, इसका मतलब मान लो एक्स एक्सिस को टच करें, तो उसका मतलब एक्स कमोडिटी का कंजप्शन 0 है. ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड वाइस वर्सा. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. So students, in this lecture we discuss first the marginal rate of substitution. क्यों वो diminish होता है? Because of diminishing marginal rate of substitution, the shape of indifference curve is convex. ठीक है, हमने ये पढ़ा. Then we talk about the assumptions. 5 assumptions we have discussed. First, 2 commodities होने चाहिए. Second, rational consumer होना चाहिए. Ordinal utility होनी चाहिए. Fourth, no satiety. And last, law of marginal rate of diminishing marginal rate of substitution. And then we talk about the properties, 5 properties. So आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.